Dear students, in the previous two videos, I have discussed Panchayati Raj and its introduction and characteristics in brief and in detail as well. This video is mainly on Gram Sabha and Gram Panchayat. But before that, we will do a brief introduction and history of Panchayati Raj institution. This lecture is in continuance with the previous two lectures. So you can go through those videos as well if you wish to, or otherwise you can continue from here, because here in brief I am going to include introduction as well as the main characteristics also. Introduction. The Panchayati Raj is a political system originating from the Indian subcontinent, found mainly in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Traditionally, panchayats consisted of wise and respected elders chosen and accepted by local community. A brief history of Panchayati Raj is in India. Panchayati Raj in India. Panchayat Raj system was first adopted by the state of Bihar by Bihar Panchayat Raj Act of 1947. It was a continuance of legacy of local self-government started by Lord Ripon in British era. Later it was implemented by Rajasthan in Nagaur district on October 2, 1959. Balwant Rai Mehta committee headed by Balwant Rai Mehta MP was a committee appointed by the Government of India in 1957 to examine the work of Community Development Program, National Extension Service, and this committee mainly recommended establishment of scheme of democratic decentralization, which finally came to be known as Panchayati Raj. And this further led to the establishment of three-tier Panchayati Raj institution: Gram Panchayat at village level, Panchayat Samiti at block level, Zilla Parishad at district level. On 24th April 1993, after the Constitutional Amendment Act was implemented, 73rd Constitutional Amendment Act. List of the committees constituted for the recommendation regarding Panchayati Raj in India till now are: Balwant Rai Mehta Committee 1957, V.T. Krishnamachari 1960, Takhtamal Jain Study Group 1966, Ashok Mehta Committee 1978, G.V.K. Rao Committee 1985, Dr. L.M. Singhvi Committee 1986, P.K. Thangan Committee 1989, and Sardar Mohinder Singh 2013. This is the structure of PRI in India. PRI means Panchayati Raj institution in India, Zilla Parishad at district level, Panchayat Samiti at block level, and Gram Panchayat at village level. India, Punjab and its 5 divisions, 3-tier system, and after 3-tier at the end is the main electorate, those choose them, Gram Sabha. Main features, characteristics of new Panchayati Raj system we have done, and in brief we can say that main features are 3-tier system, 5 years regular, every 5-year regular elections, reservation seats for SC, ST and women, and State Finance Commission recommendation. Then constitution of District Planning Committee, right? And main objectives are decentralization of power and development of villages. Now let us check out this structure of Indian administration, government working at different level. Republic of India can be further categorized in 2 kind of territories. One is states and one is union territories. They have further been divided into different divisions and districts. Divisions, for example, Punjab has 5 divisions, so divisions they have been divided into, and then those divisions have been divided into districts. Districts have 2 kinds of population. One is city population, means शहरी आबादी, और दूसरा विलेज पंचायत यानी कि रूरल आबादी,
विलेज आबादी, रूरल आबादी। At district level we have Zilla Parishad, block level we have block samiti, and then village level we have Gram Panchayat. Main thing here come, who elects them? They are elected by Gram Sabha. So Gram Sabha, who are Gram Sabha? People whose name are in the voter list. और जिला लेवल पे वी नो दैट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपालिटीज, सिटी काउंसिल काम करता है एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. So we are concerned with this aspect from here, from this angle, as we are studying Panchayati Raj. So we will go like this. ग्राम पंचायत से हम शुरुआत करेंगे, then we will read about ग्राम सभा से शुरुआत करेंगे, then we will go to ग्राम पंचायत from block समिति, then we will read about जिला परिषद. Hopefully the structure of administration and people's participation in administration is clear to you. Let us start. So this video is mainly going to be on Gram Sabha and Gram Panchayat. So first question here is, what is Gram Sabha? The term Gram Sabha is defined in the Constitution of India under Article 243B. याद रखिए, कई बार आर्टिकल पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा का डेफिनेशन किस आर्टिकल के तहत आता है. सो ग्राम सभा हैज़ बीन डिफाइंड अंडर 243B, और ये डिफाइन करता है ग्राम सभा इज़ द प्राइमरी बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एंड बाय फार द लार्जेस्ट. इट इज़ परमानेंट बॉडी, सबसे बड़ा है, परमानेंट बॉडी है, इसको भंग नहीं कर सकता कोई, यही चुनता है. ग्राम सभा इज़ द सभा ऑफ द इलेक्टोरेट, वोटर की सभा है, यानी कि ये दिस इज़ द बेसिक पार्लियामेंट और पंचायत जहाँ पे सब चीज़ पास होता है, यानी कि जो पंच बनेंगे, सरपंच बनेंगे, और फर्दर आगे ऑल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज लाइक ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड जिला परिषद आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ये जो ग्राम पंचायत बनता है, ब्लॉक पंचायत बनता है, जिला परिषद बनता है, ये दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन जो ग्राम सभा है ये खुद क्या है, ये इलेक्टर्स है, दे आर द बेस. द डिसीजन टेकन बाय ग्राम सभा कैन नॉट बी एनल्ड बाय एनी अदर बॉडी. जो भी डिसीजन ग्राम सभा लिया, इसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है. इट विल परसिस्ट. इवन पार्लियामेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई इसके लिए प्रोविज़न नहीं है. ग्राम सभा जो इलेक्टोरेट ने जो डिसीजन दे दिया है, दैट विल परसिस्ट. द डिसीजन टेकन बाय ग्राम सभा कैन नॉट बी एनल्ड, यानी एनल्ड नहीं कह सकता, यानी कि उसको बर्खास्त नहीं कह सकता, उसको काटा नहीं जा सकता है बाय एनी अदर बॉडी. द पावर टू एनल द डिसीजन ऑफ ग्राम सभा रेस्ट विद द ग्राम सभा ओनली. किसी को भी अपने किसी डिसीजन को, ग्राम सभा के डिसीजन को कौन भंग कर सकता है, कौन एनल कर सकता है, कौन ख़त्म कर सकता है? ग्राम सभा खुद, और कोई नहीं कर सकता. सो यू कैन सी द डेमोक्रेटिक पावर ऑफ ग्राम सभा. Who are the members of the Gram Sabha? The person those who are above 18 years of age and living in the village. जो 18 साल के ऊपर में है और उस विलेज में रह रहे हैं, और प्लस इंक्लूडेड इसमें हम करेंगे कि whose name have been included in the electoral rolls, यानी कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम शामिल किया गया है for the पंचायत at the village level, तो वो होंगे मेंबर ऑफ ग्राम सभा. 18 साल प्लस एज हो, 18 साल हो, और प्लस उसका नाम वोटर लिस्ट में हो. वोटर लिस्ट में, इफ़ यू आर नॉट इन द वोटर लिस्ट यू कैन नॉट वोट. सो उस गांव के मेंबर होते हुए भी आप ग्राम सभा के मेंबर नहीं होंगे. कीप इन माइंड. सो हियर आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल सजेस्ट यू, आई विल गाइड यू, आई विल एडवाइस यू कि आप सब जो भी 18 साल के ऊपर हो गए, फटाफट अपना फॉर्म 6 भर के अपने आप को एनरोल करें, वोटर बनाएं और देश के निर्माता बने. राइट. स्वीप प्रोग्राम चल रहा है. स्वीप के तहत अभी तो जो ऑनलाइन सारे ही आप हर चीज़ ऑनलाइन करवा सकते हैं, और स्वीप लिख के सिर्फ आप एंटर मारेंगे, आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा. अपना वोट बनवाएं आप, और इलेक्टर बने, खुद इलेक्टर बने, जो भी विलेज के रहने वाले हैं, और शहर के जो रहने वाले हैं वो भी अपना वोट बनाएं, ताकि आप कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस में, पंचायत जो नगर पंचायत के इलेक्शन है, म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें. तो ये है मेंबर्स. आगे चलते हैं.
शेड्यूल्ड मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। अगर ग्राम सभा की बात करते हैं तो इनकी मीटिंग्स कब होती है? क्या सिर्फ ये डू दे स्लीप आफ्टर चूजिंग ग्राम पंचायत? सो लेट अस डिस्कस इट। अकॉर्डिंग टू द स्टेट पंचायती राज एक्ट, द ग्राम सभा मस्ट मीट एटलीस्ट 2 to 4 टाइम्स इन ईयर। ये नहीं कि पंचायत ग्राम पंचायत को चुन लिया तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं, एटलीस्ट 2 से 4 बार एक साल में मिलना ज़रूरी है। 4 बार कैसे मिलेंगे? आई एम गोइंग टेल यू। फॉर पीपल्स कन्वीनियंस, लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, सभी स्टेट्स में 4 नेशनल इंटरनेशनल डेज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ रेफरेंस डेट फॉर दीज मीटिंग्स। ये 4 डेज कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी, लेबर डे यानी कि 1 मई, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो इन दिनों पे इनकी मीटिंग्स की जा सकती है, 4 मीटिंग्स जो करनी है। तो ग्राम पंचायत आर हाउएवर फ्री टू कन्वीन ग्राम सभा ऑन अदर डेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। और सभी ग्राम पंचायत को, ग्राम सभाओं को ग्राम सभा की मीटिंग के लिए किसी भी दिन को फिक्स करने के लिए ये वो उनके ऊपर कोई पाबंदी है, दे आर फ्री टू डू दैट। बट ये 4 दिन है जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो ये इस दिन प्रेफरेंस दी गई है ताकि आप एटलीस्ट 4 मीटिंग्स कर सकें। इन रियलिटी आई हैव सीन दैट के मीटिंग्स बहुत कम ही होते हैं ग्राम सभाओं के। जो पंचायत चुना गया वही माए बाप हो जाता है और दे डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। वेन्यू, टाइम एंड प्लेस ऑफ ग्राम सभा, कहाँ पे मीटिंग होगी, किस टाइम पे होगी, तो लेट अस डिस्कस दैट। ग्राम सभा शुड बी कंडक्टेड विद इन द प्रीव्यू ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के दायरे में भी होगा और प्लेस कन्वीनियंट फॉर ऑल द मेंबर्स, वो प्लेस जो कि सुटेबल होगा, सभी मेंबर इजीली पहुंच सके। इन केस ऑफ मल्टीपल विलेजेस अंडर ग्राम पंचायत, अगर किसी ग्राम पंचायत के अंडर ज़्यादा विलेजेस हैं तो इन दैट केस ग्राम सभा मे बी कंडक्टेड ऑन रोटेशन बेसिस इन ऑल द विलेजेस। तो रोटेशन बेसिस पे कीप इन माइंड कि कभी मान लीजिए 4 विलेज है एक ग्राम पंचायत में, तो एक मीटिंग यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे और चौथी इस विलेज में हो जाएगी, राइट। सो ग्राम सभा कैन बी कंडक्टेड एनी टाइम ड्यूरिंग डे टाइम, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। और टाइम का ध्यान रखना है क्या है? आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। इसका मतलब रात में नहीं करना है, सूरज डूबने से पहले और सूरज उगने के बाद ये मीटिंग कभी भी की जा सकती है। हु ऑर्गेनाइजेस ग्राम सभा? ग्राम सभा को कौन ऑर्गेनाइज करता है और उसकी मीटिंग वगैरह कौन बुलाता है? तो एक पंचायत सेक्रेटरी रखा जाता है। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। द पंचायत सेक्रेटरी आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल प्राप्त करने के बाद सरपंच से शुड ऑर्गेनाइज ग्राम सभा। ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करता है। ग्राम पंचायत सरपंच हैज़ टू कन्वीन अ ग्राम सभा मीटिंग। सरपंच की ये ड्यूटी होती है मीटिंग करनी विद इन व्हेन ईदर 10% और जब 10% ऑफ मेंबर लिख कर दे और या 50% ग्राम सभा के लिख के दें, तब विच एवर इज़ मोर, जो दोनों में से जो ज़्यादा है वो लिख कर देंगे या बोलेंगे किसी भी तरीके से, तो वो होगा, ठीक है। वो अपना व्यू, अपना रिक्वेजिशन सबमिट करेंगे, देन इट विल बी डन। इट विल बी ड्यूटी ऑफ ग्राम पंचायत सरपंच टू कन्वीन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। हाउएवर दोज मेंबर्स हैव टू इन्फॉर्म द पर्पस फॉर मीटिंग। लेकिन जिस मेंबर ने ये मीटिंग बुलाया, मान लो कि 50 मेंबरों ने, तो उनको बताना पड़ेगा किस पर्पस के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। अ रिटन रिक्वेस्ट फॉर द मीटिंग मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द सरपंच। अब रिटन रिक्वेस्ट देना ज़रूरी होगा ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स 5 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। 5 दिन पहले मीटिंग डेट से कम, यानी 5 दिन का टाइम दिया जाएगा सरपंच को कि 5 दिन के बाद 6वें दिन बुलाया जाए। इफ़ द सरपंच फेल्स टू डू द मीटिंग ऑन द रिक्वेस्टेड डेट, अगर सरपंच मीटिंग रिक्वेस्टेड डेट पर नहीं करता है, देन मेंबर्स हु रिक्वेस्टेड द मीटिंग कैन देमसेल्फ ऑर्गेनाइज ग्राम सभा मीटिंग। तो वो मेंबर जिन्होंने रिटर्न दिया था वो खुद ही ग्राम सभा की मीटिंग कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के क्या क्या फंक्शंस हैं? फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट एंड specific functions of gram sabha. First is to help implementation of development programs and schemes of पंचायत को जो भी programs और schemes मिलते हैं उसको implement करना। To identify beneficiaries for different programs and schemes, अलग अलग programs और schemes के लिए beneficiaries को पहचानना। However, if the gram sabha fails to identify such beneficiaries within a reasonable time, the ग्राम पंचायत shall identify the beneficiaries। अगर ग्राम सभा एक स्पेकुलेटेड टाइम पे, एक दिए हुए टाइम पे, स्टिपुलेटेड टाइम पे नहीं
बताता है बेनिफिशियरी, तो ग्राम पंचायत खुद ही कर सकता है उसके बाद टू सॉलिसिट सपोर्ट ढूंढना इन कैश और काइंड बॉथ एंड वॉलंटरी लेबर फ्रॉम द पब्लिक फॉर कम्युनिटी वेलफेयर, ये भी ग्राम सभा का फंक्शन होगा। एंड देन टू सपोर्ट द प्रोग्राम्स ऑफ मास एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, मास एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर के भी प्रोग्राम को सपोर्ट करना, ये भी काम होगा ग्राम सभा का। इसके अलावा टू प्रमोट यूनिटी हार्मनी अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द विलेज, विलेज में हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, उनमें हार्मनी और यूनिटी कायम करना। टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम मुखिया, उप मुखिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो ग्राम पंचायत के होते हैं मुखिया उप मुखिया, उन सब का सपोर्ट लेना और क्लैरिफिकेशन लेना, यानी कि क्या क्या काम किया उन्होंने, ये भी ग्राम सभा का काम है। टू डिस्कस एंड रेकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शंस विद रिगार्ड टू रिपोर्ट्स ऑफ द विजिलेंस कमेटी, विजिलेंस कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शंस क्या लिया जा रहा है, उसके लिए रिकमेंडेशन देना और डिस्कस करना उसको। अदर रिलेटेड मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ग्राम सभा, दूसरे मैटर भी जो ग्राम सभा के नोटिस में लाया जाए। टू कंसिडर एंड लेवी टैक्सेस, रेट्स, रेंट्स एंड फीस एंड एनहेंसमेंट ऑफ रेट देयर ऑफ, उसके बाद जो भी टैक्स वगैरह लगाया जाएगा, रेट्स उसके रेंट्स वगैरह ये सब भी, या उसको जो बढ़ाया जाएगा कम किया जाएगा, उन सबको भी कंसिडर करेगा ग्राम सभा। टू कंसिडर ऑल सच मैटर्स एज मे बी रेफर्ड बाय द ग्राम पंचायत फॉर इट्स डिसीजन, और वो सब मैटर भी डिस्कस करेगा जो ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा को दिया जाता है सोच विचार के लिए, डिस्कशन करने के लिए। तो ये था ग्राम सभा के बारे में। अब आ जाते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? विलेज काउंसिल इन इंग्लिश वी कैन कॉल दैट। ग्राम पंचायत इज अ बेसिक विलेज गवर्निंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया विलेजेस। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जो चुन के आता है लोग, उसका स्ट्रक्चर है ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। ग्राम सभा को चुनता है, जिसके बारे में हम पहले अभी डिस्कस किया। एंड देयर आर अबाउट 250,000 ग्राम पंचायत इन इंडिया, यानी 250,000, 2.5 लाख ग्राम पंचायत है पूरे इंडिया में। ग्राम पंचायत English village. It is a basic village governing institute in Indian village. It is a democratic structure at the grassroots level in India. It is a political institute acting as a cabinet of village. ग्राम पंचायत को हम क्या कहेंगे? कैबिनेट ऑफ द विलेज कहेंगे। द ग्राम सभा वर्क एज द जनरल बॉडी ऑफ द ग्राम पंचायत। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत के मेंबर है वो ग्राम सभा से इलेक्टेड होते हैं। देयर आर अबाउट 250 लाख ग्राम पंचायत, ये भी कर चुके हम। द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ग्राम पंचायत आर द लोएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस whose legal authority is 73rd constitutional amendment of 1992 जो कि 93 में इम्प्लीमेंट हुई, which is concerned with the rural local self government। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत होता है, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो पंचायत एट बेस लेवल यानी कि विलेज लेवल। ये 3 लेवल पे वर्क करता है। यहाँ पे जिला परिषद, यहाँ पे ब्लॉक समिति और यहाँ पे ग्राम पंचायत, जी पंचायत। ओके, तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड बनते हैं ग्राम पंचायतों में। इवन शहरों में भी वार्ड्स बनते हैं इलेक्शन के वक्त। एंड ईच वार्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वार्ड मेंबर और कमिश्नर, ऑल्सो रेफर्ड एज द पंच और पंचायत मेंबर, who is directly elected by the villagers. The panchayat is chaired by the president of the village known as सरपंच। पंचायत जो है ग्राम पंचायत, उसका चेयरपर्सन कौन होता है? सरपंच होता है। द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ 5 years। ये जो चुने हुए लोग हैं पंच सरपंच, इनका टर्म 5 साल का होता है। द सेक्रेटरी ऑफ पंचायत इज नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेक्रेटरी होता है पंचायत का, वो नॉन इलेक्टेड बंदा होता है टू ओवरसी पंचायत एक्टिविटीज़, जो कि पंचायत एक्टिविटीज़ को देखता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। हिस्ट्री ऑफ ग्राम पंचायत। अब इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या ग्राम पंचायत की, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Established in various states of India, the पंचायत राज system has 3-tier system। जिला परिषद at district level, नगर पालिका नहीं है,
ये ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल, दिस इज ब्लॉक समिति, कीप इन माइंड ब्लॉक समिति या पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश ग्राम पंचायत। नागौर डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस इन नागौर डिस्ट्रिक्ट में नागौर विलेज बीइंग द फर्स्ट विलेज वेयर ग्राम पंचायत वाज एस्टैब्लिश, जहाँ पंचायत एस्टैब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में। The failed attempts to deal with local matters at the national level caused in 1992 the reintroduction of पंचायत। तो जब ये पहली बार हुआ 1959 की, इसके बाद ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। इसी के रीज़न से 1992 में नया 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको री इंट्रोड्यूस किया गया पंचायत को फॉर प्रीवियसली यूज पर्पस एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये इट वाज फॉर लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो मेन पर्पस ही ये था। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत, वी नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर, हमने पहले भी किया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और बेस लेवल पे ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। ईच वार्ड इज वार्ड कमिश्नर और उसका मुखिया सरपंच होता है। इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, अ ग्राम पंचायत टर्म ऑफ ऑफिस फॉर 5 years। Every 5 years election take place in the village and all people over the age of 18 who are the resident of the territory, जो उस ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, वो वोट कर सकते हैं provided their name is in the electoral list or voter list। For women's empowerment and to encourage participation of women in the democratic process, the government of India has set up some restrictions on gram panchayat selection, reserving 1/3 of the seats for women as well as reserving seats for scheduled caste and scheduled tribes। Functions of gram panchayat, ग्राम पंचायत क्या क्या फंक्शन करती है? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, पब्लिक वर्क एंड वेलफेयर फंक्शंस such as maintenance, repair and construction of roads, drains, bridges and wells, install and maintain street lamps, गलियों में लैंप लगाना, ब्रिज वगैरह जो रोड वगैरह है गांव का उसको सही करना, और इसके साथ साथ प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन, ये भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। देन है सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है बट दे डू इट। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, मैरिजेस हॉल्स, establish and run fair price shops and cooperative credit societies, establishment of gardens, garden establish करना, ponds and orchard, जो छोटे छोटे बाग होते हैं वो। कमेटीज एट ग्राम पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत लेवल पे जो कमेटी काम करती है ग्राम के डेवलपमेंट के लिए, विलेज के डेवलपमेंट के लिए, तो देयर आर सेवरल कमेटीज दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विलेज पंचायत्स। दे आर वार्ड डेवलपमेंट कमेटी, हर एक वार्ड के लिए कमेटी बनाई जाती है, क्योंकि जो ग्राम सभा को ग्राम को हम अलग अलग वार्ड में बांटते हैं, तो उसलिए वार्ड डेवलपमेंट कमेटी, फिर चाइल्ड कमेटी, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कमेटी जो पुराने व्यापार है उससे रिलेटेड, विलेज वाटर एंड हेल्थ सैनिटेशन कमेटी, बायोडाइवर्सिटी कमेटी, स्ट्रे डॉग कमेटी, ये अलग अलग पर्पजेज़ के लिए कमेटी होती है, ये उनके काम होते हैं ये सारे। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कमेटी, विलेज स्टे डॉग कमेटी, विलेज एजुकेशन कमेटी, रोड सेफ्टी कमेटी, रीजनल प्लान कमेटी, सोशल ऑडिट कमेटी, विजिलेंस कमेटी अंडर मनरेगा MGNREGS, वुमेन एंड चाइल्ड कमेटी, गार्बेज मैनेजमेंट कमेटी, फॉरेस्ट राइट कमेटी, आर्ट एंड कल्चर कमेटी। ऑफिशियल्स कौन कौन होते हैं ग्राम सभा के? दैट यू शुड नो। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, वो तो होते हैं मेंबर एंड चेयरमैन। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years, ये आपको पता ही है। एंड ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत का। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट एन इलेक्टेड मेंबर बट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो 3 यहाँ पे मैं आपको ऑफिसर्स बता रहा हूँ ग्राम पंचायत के, वो बेसिकली इलेक्टेड नहीं होते, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सेवक एंड वॉचमैन फॉर द विलेज, राइट। तो ये ऑफिशियल्स हैं बेसिकली ग्राम पंचायत के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के अलावा। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत has various functions related to the development of the village. जनरल फंक्शन लाइक एनुअल बजट और रिलीफ का काम करना, दूसरा कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड लुक आफ्टर द पब्लिक प्रॉपर्टी, देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, डेयरी एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट, प्रमोशन टू फिशरीज, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट, विलेज एंड हाउसिंग डेवलपमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज़, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फोर्स प्रोहिबिशन, जुडिशियल पावर्स भी हैं ग्राम पंचायत को सजा देने की पावर तक। तो ये सारे ग्राम पंचायत के फंक्शंस थे। तो ये था ग्राम सभा और ग्राम पंचायत पे एक वीडियो विद इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन ब्रीफ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।